Okay, class. So now, working capital management. What is working capital? Any idea? Anyone knows what is working capital? Any idea about working capital? सर जो कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ये सर हमारे वर्किंग कैपिटल में कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, यानी जितने जो भी हमारे डेली यूज में आते जो डेली यूज में आते हैं यानी करंट एसेट्स वो सारे हमारे हो गए वर्किंग कैपिटल. So this chapter is about, it's an overview of working capital management, which means we will talk about how we'll be using these assets, how will we manage these assets. Okay, so let's start. We will talk about working capital concepts. कौन से concepts हैं? Net working capital, gross working capital. We'll talk about working capital issues. ठीक है? कौन से issues involved होते हैं इसमें? Financing current assets. How would we finance current assets? Through short term, long term mix. ठीक है? Short term financing से, long term financing से, and finally combining liability structure and current asset decisions. So this is what we'll be doing in this chapter. This is a small chapter, very basic one. So inshallah we will be able to finish it off in 2 lectures at the most. ठीक है? और बहुत ही सिंपल किस्म का है. आपसे मैंने कहा था कि चैप्टर 5 के बाद बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे सिंपल, इतने ट्रिकी नहीं हैं. ठीक? Okay? So let's start. Working capital concept. Now the first one is net working capital. So working capital we said कि वो जो चीजें जो रोज इस्तेमाल होगी, current assets, वो working capital है. So when we talk about net का मतलब ये है कि इसमें से कोई चीज माइनस होगी ना. So net working capital would be current assets minus current liabilities. This is called as net working capital. सही है? Clear? Yes. Net working capital clear? अब अगर कोई चीज net working capital है तो फिर gross working capital भी होगा. Gross ना? Yes. Gross वो है जिसमें से कोई चीज plus minus नहीं. So that means this is your current assets. यानी आपने current assets में कितनी investment की है? So what is the amount of your current assets? That would be your gross working capital. ये भी clear है? Yes. ये भी clear है class? Yes, sir. Okay. Working capital management. Now what is working capital management? Now the administration of the firm's current assets. अब ये जो आपने कहा working capital क्या है? उसकी management है. तो जो current assets हैं किस तरीके से वो काम करेंगे उसका एडमिनिस्ट्रेट करना है. और फिर how would we finance those assets? Remember the very first few lectures of finance जहाँ पे हमने कहा था कि क्या करते हैं हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन हम लोग फाइनेंस के अंदर क्या करते हैं. ठीक. So in financing we said how would we finance the assets through liabilities. याद है? ठीक है. हाँ, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड. तो वो यही बात कर रहा है कि द फाइनेंसिंग नीडेड टू सपोर्ट करंट एसेट्स, कि इन करंट एसेट्स को किस तरीके से फाइनेंस करेंगे. सो दीस आर ऑल द कांसेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. क्लियर है? Yes. आगे जाएं. Yes, sir. Okay, let's move on. Now significance of working capital management. Why is it important? ये working capital management important क्यों है? अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखें, कोई भी बैलेंस शीट उठा के देखें, so in a typical manufacturing firm current assets would exceed 1/2 of the total assets. जो total asset का फिगर होगा ना सबसे नीचे, ठीक है, अगर आप उसको देखें और आप current assets के फिगर को देखें तो current asset का फिगर, current asset and fixed asset manufacturing firms में current asset का फिगर would be more than 1/2 of the total assets. total asset का जो फिगर है उसका हाफ से ज्यादा current asset है. इस वजह से वो कह रहा है कि current asset important चीज है, इसलिए इसको पढ़ें आप लोग, इसको समझें कि इसके साथ क्या करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, इसको फाइनेंस कहां से करना है, इसको किस तरीके से चलाना है. ठीक. सो दैट्स व्हाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. नाउ इफ यू इंक्रीज करंट एसेट्स, अगर आप कहेंगे यार बस इंपॉर्टेंट है इसको ज्यादा कर दो, इसको बहुत ज्यादा कर दो, excessive levels, what will happen? Can result in a substandard ROI. ROI क्या होता है? Return on investment. What is return on investment? Mean. जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके जो रिटर्न आता है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको रिटर्न आता है. इन्वेस्टमेंट हम जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट्स में देखें, this is basically return on investment ना. ये आप कह रहे हैं return divided by investment. ठीक है. रिटर्न क्या चीज होती है? बिजनेस में रिटर्न आपकी क्या चीज है? Profit is basically your Excessive earnings. net income ना. Net income आपका प्रॉफिट हो गया divided by investment. इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? जो आपने Initial cash outflow. ठीक है, जो आपने इन्वेस्ट किया, जो आपने पैसे लगाए हैं. ठीक. आपने जो सारे पैसे लगाए हैं वो कितने हैं?
टोटल एसेट्स, जितने भी आपने जो भी पैसे आपने लगाए, कहीं जहां किसी भी इन्वेस्टमेंट लिए, चाहे अपनी है, अपनी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या सर? इक्विटी, जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, और जो बाहर से लेंगे वो क्या होगी, Liabilities. लायबिलिटीज। सो लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी वुड इक्वल टू टोटल एसेट्स। इसके थ्रू आप एसेट्स को फाइनेंस करते हैं ना, Yes, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कितना रिटर्न आप कमा रहे हैं, इन अदर वर्ड्स व्हाट इज योर नेट इनकम एज कंपेयर्ड टू योर टोटल एसेट्स। आपके टोटल एसेट्स आपको कितने पैसे कमा कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप कहें कि यार करंट एसेट को ज्यादा कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट है, तो आप कहें करंट एसेट को ज्यादा कर दो, टोटल एसेट किस चीज से बनेंगे, टोटल एसेट किस चीज से बनेंगे, करंट एसेट्स आर फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, वो तो नीडेड टू फाइनेंसिंग। अच्छा, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, ये दोनों मिलकर टोटल एसेट बनते हैं। अगर आप करंट एसेट को ज्यादा कर दें तो ये टोटल एसेट्स ज्यादा हो जाएंगे और आरओआई कम हो जाएगा। गॉट द आइडिया, गॉट द आइडिया कि ये इंपॉर्टेंट है, करंट एसेट्स इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको मैनेज करना है, ठीक। ये इसकी अमाउंट ज्यादा होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए भी जरूरी है। लेकिन ऐसे ना हो कि आप ये बहुत ज्यादा कर दें, अगर आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर आपका आरओआई कम हो जाएगा। तो इस वजह से इसको देखना है, और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि दो चीजें होंगी, उसमें से किसी एक को आपको करना पड़ेगा, एक लिक्विडिटी और एक प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं, इफ यू आर नॉट लिक्विड इनफ यू विल गो बैक। अगर सारे डिपॉजिटर्स बैंक के पास पहुंच जाओ और कह रहे हैं हमें हमारे पैसे वापस दो, हम पैसे निकालते हैं, और बैंक के पास पैसे ना हो तो फिर क्या करें, बैंक डिफॉल्ट, कल आ जाओ, ठीक। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ बैलेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ते हैं। ये बात क्लियर होगी, एक्सेसिव लेवल्स कैन रिजल्ट इन द सबस्टैंडर्ड आरओआई। यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, करंट लायबिलिटीज। अब ये जो करंट एसेट्स हैं, हम लोगों ने कहा था बैलेंस शीट है ना हमारी, जी सर। बैलेंस शीट में यहाँ पर एसेट्स है सारे करंट एंड फिक्स्ड, एंड ओवर हियर वी हैव करंट एंड लॉन्ग टर्म एंड देन ओनर्स इक्विटी, ये चीजें। अब ये जो है ये कहां से फाइनेंस कर रहा है, वो कह रहा है करंट लायबिलिटीज आर द प्रिंसिपल सोर्स, दीज आर द प्रिंसिपल सोर्स टू फाइनेंस करंट एसेट्स एंड एसेट्स, ठीक है, फॉर स्मॉल फर्म्स। छोटी फर्म्स के लिए ये मेन सोर्स होता है, करंट लायबिलिटीज आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल फर्म्स। स्मॉल फर्म्स के लिए इसको फाइनेंस करने के लिए ये होता है, वो इसके थ्रू इसको फाइनेंस कर रहा है जी। करंट लायबिलिटी तो विद इन 1 ईयर जो हम वापस करें वो होती है। हाँ वो होता है बिल्कुल। लेकिन फिर फर्म्स के लिए मतलब ऐसे कोई रिक्वायरमेंट हो जो ज़्यादा पैसे हो उसका मतलब वापस करने का तरीका 2, 3, 4, 5 साल हो तो करंट एसेट नहीं है। अच्छा, पे टेंशन कर। अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो आपने 1 साल के बाद वापस करनी है, ड्यू बिकम्स ड्यू या मैच्योर्स, सो दैट इज योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या बिल्कुल शुरू में भी हमने ये बात की थी, फाइनेंसिंग करंट एसेट्स किस तरह फाइनेंस होता है, शॉर्ट टर्म से भी और मिक्स बनाएंगे। फिर किस तरह मिक्स बनाएंगे, क्या चीज ज्यादा करें, वो अभी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। वो शायद आज अगर कवर ना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सर जो अगर कोई लायबिलिटी हो वो अकाउंटिंग साइकिल, बिजनेस के अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हो, चाहे वो अकाउंटिंग साइकिल 1 साल से ज्यादा, हाँ, फिर जाहिर बात है स्टिल इट इज करंट। सो बेसिकली द डेफिनेशन इज नॉट 1 ईयर, इट इज अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, नो सर, बिजनेस कैश साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल तो एक साथ ही होता है। मतलब आप अकाउंटिंग साइकिल होता है, वो क्या होता है, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, दो कोई होना चाहिए। सर बहुत सर जिसमें हम सारे वो बॉस करें इसको, बॉस नॉट शॉर्ट, ज्यादातर ऐसे हो गए करंट लायबिलिटी। ओके, ये भी हो गया। अब आपने करंट एसेट्स को, इसका मतलब ये है कि गौर से देखना है, और आपने देखना है कंटिन्यूअसली डे टू डे मैनेजमेंट। इसकी डे टू डे मैनेजमेंट ये ऐसी नहीं होगी कि आप हर 6 महीने बाद चेक करें,
नहीं, आप डेली चेक करेंगे यार करंट एसेट्स कितने हैं, इन्वेंटरीज कितनी है, कैश कितना है, अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम अच्छी है, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑन अ डेली बेसिस चेक करेंगे, ठीक है। सो करंट एसेट की जो सुपरविजन है या मैनेजमेंट है वो डेली रूटीन का काम है, वो एक ऐसा काम है जो आपने रोज करना है, ठीक। ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने बाद चेक करेंगे यार ऑयल सही है नहीं, आप रोज चेक करेंगे कैश कितना है कितना नहीं है, कैश कम तो नहीं हो गया, कैश ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा हो गया एक्सेस है हटाओ इसको कहीं पे इस्तेमाल कर दो, इन्वेस्ट कर दो, ब्ला ब्ला जो भी। ओके, सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अफेक्ट्स द कंपनीज रिस्क, रिटर्न एंड शेयर प्राइस। अब ये जो सारा वर्किंग कैपिटल जो अभी हम लोगों ने बात की, ये करंट एसेट, इसको अगर आप मैनेज करेंगे तो ये आपकी कंपनी के रिस्क को अकाउंट रिसीवेबल आप ज्यादा कर दो, तो क्या होगा, रिस्क ज्यादा है ना कि सारे लोग पैसे वापस, डिफॉल्ट का रिस्क हो जाएगा, लोग पैसे वापस नहीं करेंगे, ठीक है, बैड डेट्स तो रिस्क ज्यादा हो जाता है। रिटर्न, ठीक, कंपनी का रिटर्न इन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, रिटर्न कितने आप लोग प्रॉफिट उससे कमा रहे हैं, सेल्स कितनी प्राइसेस आप लोग रख रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, इन्वेंटरीज कितनी है आपके पास, सेल ज्यादा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिटर्न, शेयर प्राइसेस, अल्टीमेटली यही सारी चीजें वुड कन्वर्ट इनटू शेयर प्राइसेस। तो ये सारी बातें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ, तो इस वजह से वो कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो जरूरी है और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बहुत छोटी सी चीज, बहुत आसान सी चीज, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इसको डेली बेसिस के ऊपर, कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर करें। अब वर्किंग कैपिटल के साथ क्या क्या इश्यूज है, अब ये जो सारी बातें की ना, आप इनको वन बाय वन चेक करते हैं। लेट्स से वी टॉक अबाउट 3 डिफरेंट पॉलिसीज, हमारे पास 3 डिफरेंट पॉलिसीज हैं, एक पॉलिसी सी, एक बी, एक ए, ठीक है, ये मेरा आउटपुट है और इस जगह पर मेरे एसेट्स के कि एसेट कितना होना चाहिए, ठीक। assumption है कि 50,000 इज द मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, मैक्सिमम मेरे पास 50,000, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन आप लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं, एंड देयर आर 3 डिफरेंट पॉलिसीज, एंड एज आई इंक्रीज द आउटपुट आई एम इंक्रीजिंग माय एसेट लेवल। लेकिन ये बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं आउटपुट इंक्रीज करूं तो अपने एसेट की उसी तरह इंक्रीज कर रहा हूं, स्टार्ट में थोड़ा ज्यादा और उसके बाद एट डिक्रीजिंग, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा इंक्रीज कम हो जाए। 3 पॉलिसीज हैं। सर व्हाट इज मीन बाय एसेट लेवल? एसेट लेवल, कितने एसेट्स हैं मेरे पास, कितने एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट का लेवल क्या है, 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, ठीक है, इसको वो आउटपुट के साथ रिलेशनशिप दे रहा है कि जितना आउटपुट ज्यादा हो, हमने क्या कहता है, एक्स एक्सिस पे कौन सी चीजें होती हैं, इंडिपेंडेंट, वाई पे डिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये है कि एसेट लेवल आउटपुट के साथ है, आउटपुट जब वो ज्यादा कर रहा है तो साथ साथ एसेट्स को ज्यादा कंजम्पशन हो उसका, मतलब अगर वो ज्यादा बनाना चाह रहा है तो वो कह रहा है कि मैं एसेट ज्यादा रखूं, ठीक है, एसेट ज्यादा करता रहूं, लेकिन वो कह रहा है कि ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि बस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है कि जितने भी आउटपुट ज्यादा होगा उतना एसेट ज्यादा होगा, वो कह रहा है शुरू में थोड़ा ज्यादा, उसके बाद ये रिलेशनशिप थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिक्लाइन, इंक्रीजिंग रेट नहीं होगा। क्लियर है? स्टार्ट करें इसको पढ़ना। यस सर, ओके, अब हमारे पास जो इश्यूज है वो क्या क्या है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है जी, कितनी आसानी से आप उसको कैश में कन्वर्ट करते कितनी आसानी से आप कैश में किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं, नॉन अमाउंट ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कितनी आसानी से कितनी जल्दी इन नॉन अमाउंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इट कैन बी कन्वर्टेड। अब देखिए, अगर करंट एसेट्स ज्यादा है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है, करंट एसेट वो कि मतलब जो आसानी से कैश जो आराम से कन्वर्ट हो जाए ना, यही पढ़ा था ना हमने कि करंट एसेट वो है जो आराम से या जल्दी कन्वर्ट हो जाए, जल्दी कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि गाड़ी होगी कंपनी के पास, वो आराम से बिक जाती है, गाड़ी आराम से बिकती है, आराम से बिकती है, कम कीमत पे। हैं, अच्छी कीमत ढूंढते तो फिर वही मसला तो वही हो गया, हमने कहा इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश विदाउट गिविंग कंसेशंस और डिस्काउंट्स। अगर इस तरह अगर आप कंसेशन या डिस्काउंट दें तो हर चीज बिक सकती है। फिर तो बॉन्ड हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जितने करंट एसेट्स हैं वो क्लोज टू कैश और जितना क्लोज टू कैश होगा उतना उसका लिक्विडिटी ज्यादा है। कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट यस क्योंकि वो है ही कैश। फिर कैश के बाद बिल्कुल बात क्या आता है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल, हम कहते हैं वो कन्वर्ट हो सकता है कैश में आराम से जल्दी। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं क्या आता है, इन्वेंटरी आता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान अकाउंट रिसीवेबल और कैश के दरमियान हमारे पास मार्केट में सिक्योरिटीज आती है, ठीक, जो कि ऑलमोस्ट कैश होते हैं, जिनको आप उसी वक्त बेच सकते हैं, जल्दी बिक जाते हैं। तो ये सारी चीजें वो कह रहा है कि सारी कैश में जल्दी कन्वर्ट होती हैं,
ठीक है, जल्दी known amounts of cash जल्दी कन्वर्ट होती है विदाउट मच डिफिकल्टी। अब 3 पॉलिसीज मेरे पास है, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी। पॉलिसी ए में करंट एसेट ज्यादा है ना, देखिए ये सबसे ज्यादा करंट है। ज्यादा है ना, ये सबसे ऊपर है ना, तो इसमें एसेट लेवल सबसे ज्यादा है। यस तो अगर एसेट लेवल इसका ज्यादा है तो उसके करंट एसेट्स ज्यादा ज्यादा है, अगर उसकी करंट एसेट ज्यादा है तो उसकी लिक्विडिटी ज्यादा ज्यादा। ठीक है, इसके बाद पॉलिसी बी है, इसका लेवल उससे कम है तो इसकी लिक्विडिटी उससे कम है, एवरेज। और इसके बाद पॉलिसी सी है, जिसके करंट एसेट्स उससे भी कम है तो इसकी लिक्विडिटी कम है, लो है। ठीक है, सो सी, पॉलिसी सी में लो लिक्विडिटी, पॉलिसी बी में एवरेज लिक्विडिटी और पॉलिसी ए में हाई लिक्विडिटी। अब अगर जितने करंट एसेट ज्यादा है, हमने क्या कहा, जितने करंट एसेट ज्यादा हैं उतनी लिक्विडिटी ज्यादा है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। सही है, क्लियर क्लियर, यस यस लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, करंट एसेट ज्यादा रखें। सही है, ठीक। यस आपको ये बात की थी, अब इस बात में आने वाले लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी कि लिक्विडिटी ज्यादा होगी, ठीक, जब करंट एसेट ज्यादा हो। ओके, ये बात हो गई। सेकंड इशू आरओआई। आरओआई हमने कहा क्या चीज है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस और हमने कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इज रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, which actually means net income divided by total asset, और total asset comprises of fixed asset and current assets। तो अगर हम करंट एसेट्स को ज्यादा कर देते हैं तो आरओआई कम हो जाता है। आरओआई इज अ मेजर ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी। आरओआई प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। आप कहते हैं ना यार, अच्छा कितने पैसे इन्वेस्ट किए, इसके ऊपर कितना रिटर्न आया। इसी तरह आप देखते हैं ना कोई चीज प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आप कहते हैं यार 2 लाख रुपए दिए, उसके ऊपर मुझे 1 लाख रुपए आ गए, यार 50% कौन रिटर्न देता है, तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, ओके। अब 3 पॉलिसीज थी, ए बी सी। ए के अंदर करंट एसेट सबसे ज्यादा थे, यस करंट एसेट ज्यादा थे, तो जब करंट एसेट ज्यादा तो आरओआई कम, तो प्रॉफिटेबिलिटी इसकी सबसे लो। पॉलिसी ए की प्रॉफिटेबिलिटी सबसे लो। लेकिन अगर आपको याद हो, इस पॉलिसी ए की लिक्विडिटी सबसे हाई थी। ठीक है, तो या तो प्रॉफिटेबिलिटी आप लोग चूज करेंगे या लिक्विडिटी। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ट्रेड ऑफ है। एक चीज करेंगे तो दूसरी चीज पे फिर गुजारा करना पड़ेगा। मतलब एक चीज, इफ यू नीड वन थिंग यू विल हैव टू लेट गो ऑफ द अदर। या तो फिर दोनों एवरेज रखें, जिस तरह पॉलिसी बी है, पॉलिसी बी में लिक्विडिटी कितनी है, एवरेज। अब आ जाए पॉलिसी बी ये है, इसके अंदर करंट एसेट का लेवल मीडियम है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मीडियम है, एवरेज। या तो कोई एवरेज फॉर्म रखें कि प्रॉफिटेबिलिटी भी है और लिक्विडिटी भी है, लेकिन दोनों एवरेज। या अगर आप चाहते हैं कि लिक्विडिटी ज्यादा हो तो फिर वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। पॉलिसी सी ये, अब पॉलिसी सी में हमारे पास लिक्विडिटी सबसे कम थी क्योंकि करंट एसेट सबसे कम थे, लेकिन जब करंट एसेट कम है तो आरओआई ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि करंट एसेट कम है तो लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो जिसकी लिक्विडिटी कम है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। सर बिजनेस तो किया इसलिए जाता है ताकि मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो। प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो तो फिर तो चाहिए कि हमारी एसेट्स कम रखें और फिर तो हमें एवरेज क्यों रखना पड़ता है। देखें, हर एक की अपनी पॉलिसी है ना। देखें, कुछ लोग बिजनेस कर रहे होते हैं हाई मार्जिन्स पर, ठीक है, उनके मार्जिन ज्यादा होते हैं और 30% 40% प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं, लेकिन उनकी सेल्स फिर कम होती है, फिर बीच में सेल लगा देते हैं सर। 70%। तो इस देखिए, आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा ना कहीं पे ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। किसी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होती है, 1% 2% प्रॉफिट। जैसे जनरल स्टोर्स होते हैं सर, जनरल स्टोर्स जो हो गए, जनरल स्टोर्स नहीं स्टॉक्स कम नहीं जो है 2 रुपए का एक में स्टॉक्स मिलते हैं सर। 2 रुपए का एक हर मैच, घर में इस्तेमाल अभी भी 2 रुपए का 5 का। सर सर अगर मैं अपनी इन्वेंटरी ज्यादा कर दूं हाँ। तो आई हैव तो बड़ा हो जाता है ना, तो एक मिनट, निहाल है कुछ जी निहाल। अगर मैं अपनी इन्वेंटरी ज्यादा कर दूं सर, हाँ। तो मेरे पास बेचने के लिए ज्यादा सामान है, तो बेचने मेरी के लिए ज्यादा सामान। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कम होगी? प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कम? अगर मैं ज्यादा बेच लूं तो मेरी प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो कैसे फिर? अच्छा क्वेश्चन, थोड़ी देर बाद में बात करें इसको। एक स्लाइड
ज्यादा नहीं, सिर्फ एक स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड करूंगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन। आगे हम दो चीजें बात करेंगे, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। इसके बाद और चीज बीच में क्या थी? प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड द थर्ड वन वाज उस स्लाइड में याद है, रिस्क। रिस्क था ना, अब रिस्क की तरफ आते हैं। अब आपको आपका जवाब मिल जाएगा ध्यान दिया। हाँ, रिस्क मतलब ठीक है। हेजिंग की तो रिस्क ज्यादा। ओके, इंपैक्ट ऑन रिस्क। अब जरा देखें रिस्क ऊपर क्या इंपैक्ट है। अब मैं निहाल की बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, मैं कहता हूं चले यार ज्यादा करके, ठीक है, किसी चीज को ज्यादा करके देखता हूं कि उसके ऊपर मेरे रिस्क प्रोफाइल पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, कैश, कैश मेरा क्या है? करंट एसेट, ठीक है, करंट एसेट। और हमने कहा कि करंट एसेट्स को जब अगर ज्यादा करेंगे तो लिक्विडिटी कम हो ज्यादा हो। लिक्विडिटी ज्यादा होगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम। अगर मैं कैश को कम करूं, अगर मैं कैश को कम करूं, मेरे पास कैश बहुत कम पड़ा हुआ है, तो फिर कोई मेरे पास आए और मुझसे पैसे मांगे या कोई भी मेरी कोई भी लायबिलिटी है वो आ जाए और मुझे उसको देना पड़ जाए, तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना, तो चांस होगा कि मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा। ठीक है, डिफॉल्ट कर जाऊंगा तो मेरा रिस्क उतना ज्यादा हो जाए, रिस्क ज्यादा हो जाएगा। ठीक, यानी अगर कैश कम देर बार उसको मेरे पैसे नहीं रखेंगे। अच्छा, अगर मेरे पास करंट एसेट कम हो गए, लिक्विडिटी कम हो गई, तो मेरा रिस्क ज्यादा हो गया। ठीक है, रिस्क ज्यादा हो गया। दोबारा से हमने कहा था लिक्विडिटी कम कब होगी? जब करंट एसेट्स कम होंगे। जी सर। लिक्विडिटी और करंट एसेट सेम है, यस सर। ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये है करंट एसेट, ठीक है, हाँ, डायरेक्ट रिलेटेड। लिक्विडिटी, करंट एसेट कम हो गई, लिक्विडिटी कम हो गई, यस सर। ठीक है, लिक्विडिटी, लेकिन जब लिक्विडिटी कम हो गई तो रिस्क ज्यादा हो, ठीक है। और हमने कहा था कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का भी रिलेशनशिप आपस में इनवर्स है, यस सर। इनवर्स है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कैश मेरे पास कम है जी तो सर। मेरी लिक्विडिटी भी कम है, लेकिन मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हाँ, ज्यादा है, यस सर। क्योंकि वहां पे मेरा रिस्क भी ज्यादा है। तो जब रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। एक्सप्लेन, समझ आ गई? ये तो हो गया कैश। अब जाते हैं आगे, नेक्स्ट से मार्केट में सिक्योरिटीज को छोड़ के हमने कहा अकाउंट रिसीवेबल, याद है? आपने कहा सर अकाउंट रिसीवेबल होता है। अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल को कम करना चाहूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार अकाउंट रिसीवेबल को कम कर दें, ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल के कम करने का मतलब ये है कि मैं लोगों को कर्ज पे चीजें नहीं दूंगा। जब नहीं दूंगा लोगों को कर्जों पे चीजें, तो मेरी सेल्स वुड ड्रॉप। स्ट्रिक्ट ट्रेड पॉलिसीज रिड्यूस रिसीवेबल्स एंड पॉसिबली लूज सेल्स, पॉसिबली सेल्स कम हो जाएंगे। कैश सेल्स, हर वक्त कैश सेल्स करना या सारी कैश सेल करना पॉसिबल नहीं होता, हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। आप कहेंगे लेकिन सर वो जो स्टोर्स होते हैं वो सारे कैश सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका नेचर ऐसा है। लेकिन फिर ये भी देखिएगा कि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होती है, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लो होता है। बहुत लो, 1 रुपए 2 रुपए। ठीक है, 1 रुपए 2 रुपए। जैसे आपने कहा माचिस के ऊपर टोटल माचिस ही 5 रुपए की है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी और उसमें आपका मार्जिन कितना होगा, ठीक है, तो वो कम से कम। अच्छा, जब आपकी सेल्स कम है, आप लोग अपनी सेल्स को कम कर रहे हैं, आप हर किसी को कस्टमर को नहीं कैटर कर रहे, आप कह रहे हैं सिर्फ वो में से चीजें लो जिसके पास कैश है, कैश दो और चीजें लो, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने रिस्क को बढ़ा रहे हैं। तो वही बात हो गई, आपने अकाउंट रिसीवेबल को कम कर दिया, करंट एसेट्स कम हो गए, लिक्विडिटी कम हो गई, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो गई, लेकिन रिस्क भी साथ ज्यादा हो गई। इन्वेंटरी लेवल, निहाल आपको क्वेश्चन, इन्वेंटरी लेवल, लोअर इन्वेंटरी लेवल्स। अगर लोअर इन्वेंटरी लेवल्स है तो आपके पास आ जाएगा स्टॉक जस्ट इन टाइम। हाँ, जस्ट इन टाइम की केस में पॉसिबल है, लेकिन जस्ट इन टाइम की केस में मैं भी आपको एक बात बताऊं, ये बात करूं फिर एक मिनट आपको बताऊं। लोअर इन्वेंटरी लेवल से गया अगर आपके पास इन्वेंटरी कम है, तो फिर कस्टमर आएगा और मेरे पास चीजें नहीं होंगी। जी सर। जब चीजें नहीं होंगी मेरे पास, तो इसका मतलब यह है कि मैं सेल्स लूज करूंगा, ठीक है। सो लो इन्वेंटरी, लो लिक्विडिटी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी बट हाई रिस्क हाई, सही है, समझ आ गई? पॉज करें भी आपको मैं जेआई ओके स्टार्ट। अच्छा, सही हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं
अपने करंट एसेट्स को कम करूं तो मेरा रिस्क ज्यादा हो जाए, ठीक है। अगर मैं वर्किंग कैपिटल को कम करूं तो मेरा रिस्क ज्यादा हो जाए। सर ये So this is my policy A with the highest current asset, but it has low risk. This is average, and C it has high risk. Working capital कम, risk उतना ज्यादा, ठीक है। Risk increases as the level of current assets reduce. So current asset and risk has negative relationship. अब सारी चीजें दोबारा पढ़ सकते हैं। Current asset liquidity relationship is direct positive, ठीक। अब देखें current asset and profitability relationship inverse. Current asset and risk inverse. सही हो गया? Okay. So this is what we have said. हमने ये बातें की यहाँ। हमने कहा पॉलिसी ए वो था जिसका करंट एसेट सबसे ज्यादा था, तो करंट एसेट ज्यादा, लिक्विडिटी ज्यादा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी कम और रिस्क भी कम, ठीक। अगर कोई एवरेज पॉलिसी है तो इसके पास करंट एसेट्स एवरेज हैं, एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज, रिस्क भी एवरेज। अगर पॉलिसी सी थी, इसकी करंट एसेट सबसे कम थे, तो इसकी लिक्विडिटी सबसे कम, लेकिन profitability high and at the same time Risk high. risk high. Now look at these two relationships. Whenever profitability is low, Risk is low. you are taking low risk, so you are getting low profits. ये पढ़ा नहीं था हमने चैप्टर 5। इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिस्क रिस्क कम है तो रिटर्न कितना है? हमने देखा था कितना था? 13.7 और उसी टाइम पे बैंक्स कितने दे रहा था? 17.5 18 दे रहा था, बस, ठीक है। तो जब रिस्क लो, प्रॉफिटेबिलिटी लो। अच्छा, अब इन दो को देखिए। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का रिलेशनशिप इज इनवर्स। लिक्विडिटी हाई, प्रॉफिटेबिलिटी लो। सो दिस इज द समरी। अब ये समरी आपने ये दो बातें याद रखनी। प्रॉफिटेबिलिटी वेरीज इनवर्सली विद liquidity. Profitability moves directly with risk. Risk and return go hand in hand. Chapter 5. What is chapter 5? Chapter 5. This is chapter 5. This is chapter 5. This second point is what we started in chapter 5 now. Low risk, low return. Okay. अच्छा, classification of working capital. Now let's classify working capital. हम ये पहले से कर चुके हैं। हमने कहा था कि working capital में क्या कौन-कौन से components हैं? कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इसके बाद क्या था? इन्वेंटरीज, इसके बाद क्या था? इन्वेंटरीज और सप्लाईज और एक और चीज सर इसमें बाकी रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स और इसके अलावा बाकी रिसीवेबल्स, सप्लाईज, ओके, बाकी रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स और वही प्री पेमेंट्स, प्रीपेड रेंट, ठीक है, सही है। ये सारे हो गए। सो दीस आर द कंपोनेंट्स, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी और उसके बाद फिर ये हमारे कंपोनेंट्स हैं वर्किंग कैपिटल, सही है। आगे जाएं, लेट्स मूव ऑन। टाइम, working capital is current asset now, but then I'm telling you right now that working capital can be permanent and it can be temporary. Now what is permanent, what is temporary, we will study after the break. So let's take a 2 minutes break, pause. Okay, so now we said that we can have permanent current asset or temporary current asset. तो current asset तो हमने कहा होता ही वो है जिसका duration या जिसका benefit is for beyond one year. Business cycle. 1 year. Business cycle, okay. Business cycle of 1 year, whichever is lying. Okay. मतलब परमानेंट वो होते हैं ना जो बार वो साइकिल रिपीट हो, परमानेंट हो सकता अब जिसको रखना ही रखना है, जैसे कि इन्वेंटरी। अब बात की। Okay. Permanent working capital. तो फिर permanent working capital क्या हुआ? The amount of current assets required to meet a firm's long-term minimum needs, जो कि आपकी long term की minimum needs को cover करे। वो करंट एसेट है, करंट एसेट, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट, ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म एसेट है करंट एसेट, लेकिन वो वाला करंट एसेट है जो कि आपके फर्म की लॉन्ग टर्म की नीड्स को कवर करे, मतलब वो बार बार आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मीट अ फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स। सो दैट विल बी कॉल्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल।
and a permanent working capital would be shown like this. Okay, this is your permanent working capital, which you will be needing even in the long run, which you will be needing in the long run as well. Okay, you will be needing, you need at least 10,000 rupees with you. At least you need it all the time. But then during the season, you need 50,000, 60,000. Okay, but that 50,000 or 60,000 is extra, excess of 10,000. So 10,000 is what which you will need all the time. Minimum need. This is your minimum need even in the long run. So this is your permanent working capital. Whereas temporary working capital is the amount of current assets that varies with seasonal requirements. So it varies with seasonal requirement. When there is season, it will be high. When the season is off, it will vanish. When there is a season, it will start again. This is the peak. Then season is off. So it means that temporary working capital would be needed जी सर. when there is a season for that. Yes, sir. When there is a market for For that. example, market for ice cream or jackets in winter. In winter would be high, but you would still need jackets in summers. Why? Because somebody would want to go to Skardu and he or she would need it. So you would have some inventory at least. Yes, sir. Yes, sir. 2 दिन के लिए जाए और यहाँ से 10,000 की जैकेट ले ले 2 दिन तो फिर क्या तो 2 दिन के लिए किराया मिलेगा. सर क्या पता नहीं गिफ्ट पुराने करनी वाला तो बड़ा होगा सर एडजस्ट करेंगे नहीं गिफ्ट करनी होगी सर. Now he is talking. रुपया वो सारे फूल लगा है जब विंटर की तरह ना समर की तरह जैकेट पर Skardu क्या हो समर जैकेट पका ली हो विंटर पका ली. تدخل كوبينيا ما نسيت كان أخبر كارو. Okay, let's start. Class. Concentrate, class, concentrate. So now we have working capital or current asset which is permanent, and then working capital which is temporary. So you will need it in the season, then you don't need it in off season. You need it in the season, don't need it in the off season. This is called as temporary current asset. This one would be called as permanent current सर asset. Clear हो गया? ये दोनों जो ग्राफ में जो लाइंस बनाए गए टेम्पररी और परमानेंट के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए या सेमी इंडस्ट्री. नहीं, ये एक एग्जांपल है किसी भी बिजनेस के लिए. ठीक है? क्वेश्चन सिर्फ आपका ये होना चाहिए कि सर ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये कांस्टेंट क्यों? असल में सर एक कांस्टेंट है और एक zigzag है सर. हाँ, लेकिन ये भी कांस्टेंट नहीं है ना. This is also increasing with the passage of time. This is time ना, so this is also increasing with the passage of time. This is also increasing with the passage of लेकिन time. सर ये नीचे So that वाला means सर ये नीचे वाला ये लीनियर है, ऊपर वाला लीनियर नहीं है. ऊपर वाला लीनियर हो भी नहीं सकता ना. सीजन जब आता है तो वो ज्यादा हो जाता है. देखिए सीजन एकदम तो नहीं आता. सीजन आहिस्ता आहिस्ता आता है क्या? मतलब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आएगी तो आप लोग जैकेट्स लेंगे. जिस दिन बारिश होती है, have you seen, जिस दिन बारिश होती है उस दिन आपको रोड पे सारे या अम्ब्रेला वाले या जैकेट्स वाले गाड़ी का देयर इज व्हाई बिकॉज़ दिस इज द पीक. नहीं आजकल तो लोग समर में ज्यादा लेते हैं ना क्योंकि ऑफ लग जाता है 50% 70%. सर that's the Okay, so that's how it increases, comes to a peak, then decreases. सही है? It decreases gradually. जी सर. सही है? ये भी क्लियर हो गया? अब आगे जाएं. सर वो क्वेश्चन स्ट्रेट क्यों नहीं है सर स्ट्रेट क्यों नहीं? मैं बात कर हाँ, क्योंकि वक्त के साथ साथ उसका वॉल्यूम बढ़ता जा वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है. तो उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होती जा रही है तो वक्त के साथ साथ उसके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. जी सर. ठीक है? बस इसका सिर्फ यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है. सही हो गया? ये भी सही हो गया? अब इन सब कैपिटल को, इन सब वर्किंग एसेट्स को कहां से लिख रहा हूं? वेयर टू गेट इट फ्रॉम? जहां से आपको फायदा हो जहां से मुझे फायदा हो. या तो इक्विटी से आएंगे या डेट से. किसी न किसी थ्रू फाइनेंस करना पड़ेगा ना इसको. I will need some way to finance it. Now which one should I use? Should I go for लोन. लोन की बात नहीं, इक्विटी डेट की बात नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं हाँ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मिक्सचर या मिक्स कर. एसेट ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर भी दो किस्म के एसेट हैं. जी सर. एक वो एसेट है जो कि हर वक्त चाहिए, परमानेंट करंट एसेट.
और एक है टेम्परेरी करंट एसेट, ठीक, ओके। कैसे इसको फाइनेंस करें? देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। एनी आइडिया? स्पॉन्टेनियस, Spontaneous. at the moment. Continuously. स्पॉन्टेनियस एट द मोमेंट ना, जैसे कि मार्केट Continuous. जैसे टेम्पररी इसमें हम टेम्पररी यूज करेंगे। जैसे मार्कर्स, हाँ क्या सर तो ये भी डे टू डे हर टाइम यूज होता है सर। हर टाइम यूज होता है, लेकिन इसको अगर मैंने फाइनेंस करना है तो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग क्या होगी इसकी? शॉर्ट टर्म मटेरियल। शॉर्ट टर्म दोगी, लेकिन देखिए स्पॉन्टेनियस क्या है, एट द मोमेंट जो खुद ब खुद हो जाएगी। लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकते हैं सर। ना 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 ना, देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए आपको फॉर्मल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ना, गो टू द बैंक, फाइंड एन अरेंजमेंट। ये इस तरह नहीं है स्पॉन्टेनियस, माइक्रो फाइनेंस एक सुनो ChatGPT से पूछते हैं सर, ChatGPT से पूछते हैं। नहीं चैट जीपीटी से ना। अच्छा मैं आपको बता, मैं आपको, you go to a shop, you go to a factory, wholesaler, and you tell them कि you need 1000 markers, but you will pay after 1 month. So have you got a financing for 1 month? यस सर। वो माइक्रो फाइनेंस बैंक से अगर लोग अगर उससे लोन को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या आपको अपने सप्लायर को इंटरेस्ट देना होता है कि नहीं? सिर्फ आप पेमेंट डिले कर देते हैं। अगर आप जब भी पेमेंट डिले करते हैं आपको एक किस्म की फाइनेंसिंग मिल जाती है। मिल, सबको फाइनेंसिंग मिल गई। आपको 1 महीना मिल गया, 1 महीने में आराम से उसको इस्तेमाल करें, फिर आगे आप पढ़ेंगे कि हम ऐसी चीजें करेंगे कि हम 1 महीने में उसको बेचेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर साथ साथ इसकी पेमेंट्स करते रहेंगे। ट्रेड क्रेडिट भी एक टाइप का स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। ट्रेड क्रेडिट जो है वो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है, एक किस्म की फाइनेंसिंग which will happen on its own in a business. सर आजकल तो लोग एक बार कर्ज कर देते हैं। हाँ, purchasing something on account. आजकल तो लोग एक बार कर्ज कर देते हैं, फिर आपकी दुकान पर भी नहीं आते। तो हर किसी पे तो नहीं बेचते सर, ट्रस्टेड बंदे पे बेचते हैं। वो शक्कर जी। इसने ये अपना या तो ये काम करता है और या इसको ये पता है। मुझे पड़ता है ये सर। सुर सर अपना ना। Okay, so spontaneous financing, खुदा खबर सही रहा। Can you pause it?